Hello everyone and welcome you all to this Python course. In this course, we'll be learning Python from scratch to a level where we'll be making some projects in Python. So today is the very first lecture. This is the lecture one in this course. In lecture one, we'll be covering topics including the introduction to Python, basic introduction, features of Python. Then we'll be learning about something which is called as tokens. You might have heard, even if you haven't. Don't worry, I am there. I'll explain you everything about tokens, types of tokens. Then um, next thing, we'll be having a superficial idea about variables, and in the upcoming lecture, we'll be diving deep into the topic variables. Okay, so let us start with the introduction part. First of all, some features of Python. Uh, Before that, I guess know that everyone who is coming to this course have must be having the idea that what is Python. So Python is a programming language. It is a very useful programming language in today's scenario. Let's have a look into the features of Python. First of all, Python is a beginner-friendly language. Okay, clear syntax and extensive resources. The syntax in Python are very small. That's why they are very clear and like it is very clean when we look at the syntax. It is easy to code. It is easy to understand. Next thing is extensive resources. Extensive resources means the community of programmers which code in Python. Those number of programmers is very large. Okay, so because of the contributors in Python is very large, they have made several resources. If you go online, you want some projects in Python or anything, there are extensive resources available because of the very active community of Python programmers. Okay. Then cross-platform works seamlessly on Windows, Mac, Linux, and more. No matter what system, what operating system you are using, it works seamlessly. It is a cross-platform language. Then open source and free. It is accessible to everyone. Everyone can, whoever wants to code, whoever wants to use, can use it freely without paying anything. Then powerful and versatile, used for web development, data science, AI, ML, etc. So this, I guess, everyone knows that today AI ML field is a very becoming a very vast field. Okay, every day some or the other growth, other development offering in this field, and in this field, Python is a very important language, very useful language, and not only just in the field of data science or AI ML, but also in the web development and other. It has also other. It also has its other usage. Okay. Then dynamically typed. Now, what does this mean? Dynamically typed code adapts as you go, making it flexible and fast for prototyping. See, if you have coded ever in any other languages, including C++ or Java, you might be aware that whenever we code in these languages, we are creating any variable, like we are reserving a memory location in the memory of the computer. Then we have to tell that what type of data we are going to store. That is what we call data type, right? But in Python, there is no scene of data type. You do not have to tell the language that what type of data you are going to store in that memory location or in that variable. You just have to directly make the variable without telling its type. Okay, so it automatically gets idea. It automatically recognizes that what type of data you are going to store. Okay, so you do not have to mention any data type. This is what is meant by dynamically typed. Got it. Now, coming next, we are done with features. Now, why should we learn Python? So these are the only reasons. These are the basic features what we went through just now. Okay. First is high demand due to its vast usage, versatile usage, can be used across various industries. है ना? It it has a high demand in the market. Then beginner friendly, okay, easy syntax, clear, easy to read, easy to write. So it is a very beginner friendly language. We do not have to write lines and lines of code just to print a single sentence.
You can do that in a single line of code, okay, as compared to the other languages where we have to write several lines of code just for a small task to be done. Then works everywhere instance supports every operating system, no matter which system you are using. Then pre-built tools. What does this mean? Access a vast collection of libraries and frameworks for diverse tasks, saving your development time. In Python, there are a large number of inbuilt libraries and frameworks. If in other language you have to perform a small function, for that you yourself have to make a code your or a function to perform that specific task. But in Python, it is possible that there is inbuilt function. Okay, in some library there is an inbuilt function. So what you all have to do is just to call that function. You do not have to write that code yourself. Okay, so inbuilt it has inbuilt tools. Many features are inbuilt itself, so you just have to make a call. You do not have to code everything by yourself. Okay, and these are the reasons sufficient to learn Python. Then let's come to the applications of Python. There we cannot limit this part because there are a number of applications of Python. A few are mentioned here: web development, data science, scripting and automation. Okay, then machine learning and artificial intelligence, that is what AIML, and game development and desktop applications. These all are some of the many applications of Python. Okay, then let's come to the tokens now. What are tokens? Tokens in Python are the smallest unit of language, similar to words in a sentence. They include identifiers, operators, literals. Mastering these tokens is essential for effective Python programming. Okay. See, you write a sentence. Okay, suppose you write a sentence. What that sentence is made up of, what the sentence consists of. It consists of words, right? So, similarly, when we write a program, it actually has the syntax actually has some words. Okay, those combination of words is what makes the program. Each of that word, each of every word which combines, which comes together to each and every word which comes together to make a Python program. That word is known as a token. Okay. So tokens are basically the smallest unit of any language. Okay. Whatever we have written or whatever part of a program you see, that can be said as a token. Now, there are five types of tokens: keywords, identifiers, literals, delimiters, or these are also known as punctuators, and operations. Okay, let's see them one by one. Okay, these are some examples mentioned. This we'll see next. First of all, let's go to the definitions. Now, types of tokens. Okay, first is keyword. Keywords are essential building pieces of Python program, governing the syntax and structure of the language. These specialized words have uh, established meanings and serve as orders to the interpreter, instructing them on specific activities. They cannot be used as variable names, function names, or any other random purpose. And these are the examples. Okay, 33 keywords. So, what are keywords? There are some words in any programming language which have reserved meaning. Reserved meaning means if we are using that word, तो उसका एक ही मतलब है और वो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है. आप या कोई प्रोग्रामर नहीं बता सकता कि उसका मीनिंग क्या होने वाला है. कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, वो इनबिल्ट है, वो उसमें ऑलरेडी कोड किया जा चुका है, ठीक है. तो वो सारे वर्ड्स जिनके मीनिंग रिजर्व हैं और कंपाइलर को पता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है. कीवर्ड्स को हम कोई वेरिएबल का नाम हम नहीं दे सकते, जैसे कि फॉल्स एक कीवर्ड है, ठीक है. तो हम ऐसा कोई वेरिएबल नहीं बनाएंगे जिसका नाम फॉल्स होगा. हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके बना सकते हैं, उसको कुछ इधर उधर करके बना सकते हैं, कुछ वर्ड ऐड या कुछ नंबर ऐड करके बना सकते हैं, लेकिन हम फॉल्स नाम से कोई वेरिएबल नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि वो एक कीवर्ड है, उसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, तो उसके जैसा कोई और वर्ड फिर नहीं हो सकता जिसका मीनिंग हम कुछ और देना चाह रहे हैं, ठीक है. ऐसे ही हम फंक्शंस बनाते हैं.
फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं। अभी तो वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन वेरिएबल्स एज इफ नाउ आप इतना समझिए कि हमको जब कोई प्रोग्रामिंग करनी है, हमको कुछ वैल्यू, हमको कुछ डेटा चाहिए, तो हमको उसको स्टोर कराना पड़ता है। उसको स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक तो हमको हमारे प्रोग्राम में जब भी कुछ डेटा इनपुट लेना है, ठीक है, कोई वैल्यू इनपुट लेनी है और हमें उसमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है, तो हमें उसे कहीं पे स्टोर तो कराना पड़ेगा कंप्यूटर की मेमोरी में। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस को हम रिजर्व कर लेते हैं अपने मेमोरी में। और अब क्योंकि हमें पता रहे कि वो स्पेस को हमें जब भी वो डेटा हमें यूज करना है, तो हमें वो डेटा को जब यूज में लाने के लिए कॉल करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो जहाँ पे स्टोर है, हम उसको उस प्लेस को एक नाम दे देते हैं, ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे देते हैं। वो नाम क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। हम वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी में एक लोकेशन को रिजर्व करा रहे हैं और फिर हम उसमें अपने अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वेरिएबल, हम जब ऐसे कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम उसका नाम कोई कीवर्ड पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड का मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है। फिर अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, अब फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हमें कोई कुछ को हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है और जो कि हमें अपने प्रोग्राम में मान लीजिए बार बार करना पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बार बार मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड तो लिखेंगे नहीं, हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा। और तो हम क्या करते हैं, हम एक बार एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें क्या होता है, वो सारी लाइन्स ऑफ कोड हम एक बार लिखते हैं और फिर उसके बाद हमें जब भी वो टास्क फिर से परफॉर्म कराना है, तो हम सिर्फ उस फंक्शन को उसके नाम से कॉल करते हैं। तो जस्ट एक सिंगल कॉल से, मतलब एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से हमारा वो काम हो जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा कोई फंक्शन बना रहे हैं या वेरिएबल, जो भी हमने देखा कि क्या होता है, हम वो बना रहे हैं, तो हम उसका नाम कोई कीवर्ड पे नहीं देंगे, ठीक है। फिर ये देखिए, ये सामने कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, 33 कीवर्ड्स इन पाइथन, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, और यहाँ पे काफी सारे हैं, आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टोकन्स आते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? Identifiers are names given to variables, functions, classes, lists, methods, etc. Then there are rules given for the आइडेंटिफायर्स। तो बेसिकली अभी जो हमने देखा कि फंक्शंस और वेरिएबल्स क्या होता है, हम जो जब इनको क्रिएट करते हैं, हम इनको जो नाम देते हैं, उन्हीं नाम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ये प्रोग्रामर के ऊपर रहता है, वो जो नाम देना चाहे उस फंक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, या वेरिएबल में किस टाइप की मेमोरी स्टोर हो रही है, किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी नाम दे सकते हैं और वो नाम क्या कहलाया जाएगा, आइडेंटिफायर्स कहलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ रूल्स होते हैं, हम जब मीनिंग कर रहे हैं कोई वेरिएबल की, फंक्शन की, या फिर क्लासेस या लिस्ट वगैरह, ठीक है, तो हम जब ये सब कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को देख के हमें हमारे आइडेंटिफायर्स का नाम देना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला रूल है, पाइथन इज केस सेंसिटिव, एआई एंड कैपिटल एआई आर डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर्स। अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें एक ये आ रहा है फ्रेज क्या, स्मॉल ए और आई, और दूसरा फ्रेज आ रहा है कैपिटल ए और आई, कहीं पे बीच में या कहीं आखिरी में, तो वो दोनों फंक्शंस क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे ए आई है तो सेम ही है, नहीं। पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। पाइथन के लिए कैपिटल ए एक अलग चीज है, स्मॉल ए एक बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। फिर an identifier can start with a capital letter A to Z, a small letter small a to small z, और an underscore। ये तीन चीजों से हम अपने आइडेंटिफायर के नेम को इनिशिएट कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर से, कोई भी स्मॉल लेटर से, या फिर एक अंडरस्कोर से। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी अदर कैरेक्टर। इन तीन चीजों के अलावा हम उसको कोई भी और चीज से, नंबर या कोई और चीज से हम उसको इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। Then digits can be a part of an identifier but not the first character. As I just told you, हम digits को include कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स के नेम में, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, उसका फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। फिर
स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हम कोई स्पेस नहीं देंगे बीच में आइडेंटिफायर के नेम के, और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट, हैश, ये सब हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर वैलिड एग्जांपल्स देखिए, कुछ वैलिड एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे कीवर्ड्स हम बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ये CALC है, अल्फा है और वैर है। ठीक है। फिर कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे 91 रोड। तो ये क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये इनिशिएट हो रहा है एक नंबर से, और हम नंबर से इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर 91 बीच में आखिरी में आता तो ये सिर्फ वैलिड होता। ठीक है। फिर हैश ट्वीट, तो हैश तो आ ही नहीं सकता, ना स्टार्टिंग में ना बीच में ना कहीं पे। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। तो फिर ये भी एक इनवैलिड एग्जांपल है। और आई फिर स्पेस फिर एम, तो देखो ये इनिशिएट तो हो रहा है कैपिटल आई से, तो चूंकि ये सही है, लेकिन बीच में इन्होंने क्या दे दिया, ब्लैंक स्पेस दे दिया, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये भी एक इनवैलिड एग्जांपल है। ओके, तो अभी तक हमने दो टाइप के टोकन्स देखे हैं, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स क्या है? वो वर्ड्स है जिनका रिजर्व मीनिंग है कंपाइलर के पास। आइडेंटिफायर्स क्या है? वो वर्ड्स है जो हम कोई प्रोग्रामर क्या करता है, नेमिंग करता है जब फंक्शंस की या वेरिएबल्स की, तो वो जो उनका नाम देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली आइडेंटिफायर्स। देन कमिंग ऑन टू लिटरल्स और वैल्यूज। लिटरल्स क्या होते हैं? अब लिटरल्स वो वर्ड्स होते हैं, या फिर कहना चाहिए वो टोकन्स होते हैं एक्चुअली, जिनका वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है। Literals are essential building elements of Python programming, expressing fixed values directly inserted within code. ठीक है। इनको कुछ अलग से इनका नेमिंग वेमिंग करने की जरूरत नहीं है, इनकी वैल्यू डायरेक्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 1 2 3। ठीक है। ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, और ना ही ये कभी चेंज होंगी। तो जैसे 5 है तो वो 5 ही रहेगा, 6 थोड़ी हो जाएगा। ठीक है। ए, अगर मान लो कोई वेरिएबल है ए, उसको मैंने वैल्यू 5 दी है, और फिर मैं उसको बढ़ा रही हूँ 1 से या 2 से, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ रही है? एक ही बढ़ रही है, 5 नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। 5 तो 5 ही रहेगा किसी भी कंडीशन में। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, तीन टाइप के, एक्चुअली 4 टाइप के लिटरल्स हैं। पहला न्यूमेरिक लिटरल्स, जो कि यही होता है, सारे नंबर्स को इंक्लूड करेगा, ये फ्लोट वैल्यूज या फिर इंटीजर्स वैल्यूज। फिर आता है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? हमने जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी होगी, मे बी आप लोग ने एक प्रोग्राम तो लिखा ही लिखा होगा, हर प्रोग्रामर लिखता है अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का प्रोग्राम, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू अपना डबल कोट्स के अंदर हम लिख के देते हैं क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब अगर मैं हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस ना दूं, तो जो प्रिंट होगा उसमें भी मुझे स्पेस नहीं मिलेगा, है ना? जब मैं मतलब प्रिंट करा रही हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, तो मैं वो बीच में स्पेस ना दूँ, तो मुझे वहां पे भी नहीं मिलेगा। या फिर मैं बीच में डबल स्पेस दे दूँ, तो आउटपुट में भी डबल स्पेस आएगा। मतलब मैं एग्जैक्टली जो उसको बोलूंगी ना, एक एक मतलब एक एक चीज में जैसी बताऊंगी, वो डबल कोट्स के अंदर में जैसी लिखूंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे वैसा आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है। और ये किस फॉर्म में? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रिंग लिटरल्स हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है इनकी, जैसा हम डबल कोट्स में लिखते हैं वैसे ये प्रिंट होते हैं। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे टोकन्स को हम क्या बोलते हैं? हम लिटरल्स बोलते हैं। देन बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? बूलियन लिटरल्स ट्रू और फॉल्स, ये दो वैल्यूज बस होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। नन लिटरल, ये ब्लैंक होता है, नन, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। फिर उसके बाद, अब ये थोड़ा सा डीप है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके, बस थोड़े से डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। कमिंग ऑन टू operators. Now, what are operators? We have already, studied operators in maths, basically mathematical operators, mathematical operations, है ना? तो यहाँ पे और भी कई टाइप के ऑपरेटर्स हम पढ़ने वाले हैं। Operators are the unnoticed essential of Python programming, making complicated operations simple. Complicated operations हमारे ऑपरेटर्स की हेल्प से काफी सिंपली हो जाते हैं। सबसे पहले तो आता है क्या, कोई भी ऑपरेटर्स क्या है, कोई भी ऑपरेशन, है ना, हमें जो परफॉर्म करके दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। उसकी हेल्प से हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। सबसे पहले टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। इनके अंदर क्या क्या आता है? बेसिक मैथ्स वाले ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है। एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और भी आता है, जैसे मॉड्यूलो हो गया, और जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है वो सब आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। ठीक है।
फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हमारे पास जब दो वैल्यूज है, हमें उनके उनके बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि डबल इक्वल्स टू, दो वैल्यूज आपस में इक्वल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें डबल इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। फिर नॉट इक्वल्स टू, एक एक्सक्लेमेटरी साइन होता है और फिर इक्वल्स टू का साइन होता है। ये किस लिए होता है, नॉट चेक करने के लिए कि दो वैल्यूज आपस में अनइक्वल है कि नहीं है, ठीक है। फिर ग्रेटर देन और लेस देन, ये तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, क्या कौन सा नंबर किससे बड़ा है, ठीक है, या ये वाला नंबर इससे बड़ा है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होगा जो कंपैरिजन का टास्क परफॉर्म करके दे रहे हैं हमें। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपने शायद लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, काफी इजी है ये समझने में। ये होते हैं एंड, और एंड नॉट। जैसे मान लीजिए दो कंडीशंस हैं, ठीक है, दो कंडीशंस हैं और दोनों ही क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जैसे मुझे कोई नंबर को मुझे यूज करना है अपने प्रोग्राम में, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि पहला तो वो नंबर इवन होना चाहिए, नहीं, पहला वो नंबर ऑड होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि वो ऑड होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, मेरा काम नहीं चलने वाला है। मुझे वो नंबर मैं तभी एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करूंगी जब दोनों ही चीजें ट्रू होंगी, वो ऑड भी होगा और वो प्राइम भी होगा। तो मैं इस केस में क्या करूंगी, एंड टोकन का या फिर एंड ऑपरेटर का यूज करूंगी, ठीक है। मैं ये कंडीशन लगा दूंगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी वो नंबर को हमें आने देना है, इनपुट देना है, ठीक है। फिर और ऑपरेटर क्या होता है, जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी हमारा काम चल जाएगा, तब हम क्या करते हैं, और ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर नॉट ऑपरेटर, मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल हम बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर नहीं है तभी हम कर सकते हैं, तो हम उस केस में क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं कि इफ नंबर इज नॉट प्राइम देन ओनली, फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर इनपुट लेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि एक तो होता है इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, जैसे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, एक वेरिएबल मैंने बनाया ए, ठीक है, उसको मैंने वैल्यू दी टू, ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए, उसको वैल्यू दी टू। तो अब ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इसने क्या किया, बेसिकली ए वेरिएबल को टू वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। फिर और देखते हैं और टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए। एक तो इक्वल्स टू का साइन हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है। ये मत बोलना कि ये इक्वल करने के लिए या चेक करने के लिए, ये सब के लिए मत बोलना, क्योंकि इसके लिए कौन सा होता है, डबल इक्वल्स टू होता है, जब हमें चेक करना होता है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, ये जब चेक करने के लिए कि दो वैल्यूज आपस में इक्वल है कि नहीं। लेकिन जब हमें वैल्यू को असाइन करना है तो फिर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिंगल इक्वल्स टू के साइन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज आती है, जैसे हमें कोई वैल्यू को क्या करना है, एक से या दो से या कितने भी नंबर से हमें उसको इंक्रीज करना है। मान लो एक वेरिएबल है बी, ठीक है, बी। तो मुझे बी को क्या करना है, बी प्लस वन करना है, ठीक है। तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ बी प्लस इक्वल्स टू वन, ठीक है। का मतलब सेम रहता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये जो है पूरा ये भी क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। वैल्यू को ये इंक्रीज कर देता है। अगर मुझे मान लो दो से इंक्रीज करना है बी की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगी, बी प्लस इक्वल्स टू टू। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, बी इज इक्वल्स टू बी प्लस टू, ओके। सेम चीज बाकी और ऑपरेटर्स के साथ, कौन से ऑपरेटर्स के साथ, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं सी, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे एक से कम करनी है, तो मैं तो लिखूंगी, इसका मीनिंग क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू सी माइनस वन, ठीक है। अगर मुझे इसकी वैल्यू को अब मल्टीप्लाई करना है, दो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, सी एस्ट्रिक इज इक्वल्स टू टू।
इसका मतलब क्या होगा, C इज इक्वल्स टू C इंटू टी। ओके, ये सारे क्या हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। तो हमने ऑपरेटर्स भी देख लिए। एक चीज और रह गई है, पर मैं आपको अब डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम लिखा है। क्या लिखा है? हैश और सैम्पल पाइथन प्रोग्राम फॉर A1 in range 1 to 10 colon if A modulo 2 is equals to 0 then print A1। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले तो ये जो हमें स्टेटमेंट दिख रहा है ना हैश, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कमेंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी हम नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, फिर अभी जो हमने टोकन्स पढ़े हैं वो देखते हैं। जैसे ये देखिए फॉर, इन और इफ, इन पे रेड एरोस जो साइन कर रही हैं, तो ये वो वर्ड्स हैं जो कंपाइलर को पता है कि अगर फॉर यूज हो रहा है तो यहाँ पे ये फॉर लूप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल भी आ, डरना मत सुन के। ये अभी सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फॉर एक कीवर्ड है, इन एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड कीवर्ड है। ठीक है, उसका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। इसको पता है कि जब ये वर्ड यूज हो रहा है तो हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर। तो ये देखो यहाँ पे ये A1 और ये A1, ठीक है, ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है। यहाँ पे ये प्रोग्रामर ने इसको नाम दिया है, ठीक है, एक वेरिएबल को। फिर आते हैं किस पे? ऑपरेटर्स पे। पहले लिटरल्स देखते हैं। देखो ये 10 है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, 1 हमेशा 1 रहेगा, 10 हमेशा 10 रहेगा। ये कोई वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली लिटरल्स बोलते हैं। फिर ऑपरेटर्स, तो ये देखो, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ऑपरेटर्स, अभी हमने पढ़ा। फिर एक और चीज जो हमारे पांचवे टाइप के टोकन है वो क्या है? पंक्चुएटर्स, या फिर इसको डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? बाकी जो साइंस बचते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स टाइप के साइंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएटर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉलन, ठीक है, यहाँ पे ये कॉमा और ये यहाँ पे कॉलन। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? हमारे पंक्चुएटर्स हो गए। ओके, पंक्चुएटर्स हो गए। तो हमने टोकन्स कंप्लीट कर लिया है, कंग्रेचुलेशंस। टोकन हमने 5 टाइप के पढ़ लिए हैं: आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। ठीक है, अब आते हैं हम, आखिरी टॉपिक है ये इस पे, कमेंट्स पे। कमेंट्स क्या होते हैं? अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, ये नीचे एक और एग्जांपल लिखा है, हैश दिस इज अ कमेंट। ठीक है, कमेंट क्या होता है? जब हम बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं ना, तो हमको क्या करना होता है? जैसे बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है, कोई बहुत बड़ा कोड है, तो हम लिख तो लेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद शायद हम खुद ही भूल जाए कि हमने किस जगह पे क्या लिखा था। या फिर अभी ये कोड है तो ये किस काम का है। या फिर अगर हमने हमने वो कोड किया है और अब हमें किसी और को वो कोड दिखाना है, ठीक है, कोई और को यूज करना है हमारा कोड। हाँ, तो वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा पर्सन कि ये कोड का क्या मतलब है, उसको समझ में नहीं आएगा, इकट्ठा पूरा कोड लिखा रहेगा। तो हम क्या करते हैं? कॉमेंट्स एक बहुत ही प्यारा फीचर है। इससे क्या होता है? हम अपने समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, अपने याद करने के लिए, कि जैसे मैंने एक कोड लिखा है जैसे कि आप परफॉर्म कर रहा है कोई आ, मान लो कुछ दो नंबर्स को या एन नंबर्स को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा एक कमेंट ऐड कर दूंगी उस कोड के पहले, जो बताएगा कि दिस कोड इज फॉर मल्टीप्लाइंग द एन नंबर्स। ठीक है, तो मुझे, अब मैं जब देखूंगी तो मुझे याद रहेगा कि अच्छा ये कोड इसलिए है, मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन रहेगा। ठीक है, अब कंपाइलर क्या करता है? जैसे ही कंपाइलर ये देखता है कि यहाँ पे एक हैश लगा हुआ है, उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, तो कंपाइलर समझ जाता है कि ये एक कमेंट टाइप का स्टेटमेंट है। यहाँ पे उसको क्या करना है? स्टेटमेंट को बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, तो वो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा और फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो भी कोड होगा वो उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो कमेंट्स क्या करते हैं? कमेंट्स आर लाइन ऑफ कोड दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। They are used to make the code more readable and understandable by adding notes, explanation and documentation। ठीक है, हमें कुछ भी नोट ऐड करना है, एक्सप्लेनेशन ऐड करना है कि हमने क्यों किया था। ठीक है, तो हम वो सब कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। हम जो मर्जी वो लिख सकते हैं कमेंट में, किसी भी कैसे भी कोई भी वर्ड्स यूज करके लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर को उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, वो हैश देखेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो
ये था हमारा आज का लेक्चर 1। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने फीचर्स देखे पाइथन के, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है पाइथन पढ़ना। और फिर हमने देखा टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है कोई भी पाइथन प्रोग्राम की। जैसे सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, वैसे पाइथन प्रोग्राम में टोकन्स होते हैं, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ टोकन पढ़े, 5 टाइप के टोकन्स पढ़े। कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, लिटरल्स, और फिर हमने पढ़े पंक्चुएटर्स या फिर डेलीमीटर्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या? कॉमन्स पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा वेरिएबल्स, और उसके आगे के कुछ टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में फिर कवर करेंगे। So this was just the starting of the course. I hope you guys enjoyed it, and आपको